سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے حوالے سے۔ یہ آلودگی کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک بہت بریف پروگرام کر چکی ہوں، لیکن کیونکہ آلودگی جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے اور لاہور شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ یہاں پہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو اوسطاً عمر جو ہے وہ آپ کی 7 سال تک جو ہے وہ آپ کو شرح سے کم ہو رہی ہے، یعنی آپ اپنی ایج سے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کی آلودگی ہے یہاں پہ وہ آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں گے، یعنی 10 سال آپ کی زندگی کے کم ہو جائیں گے۔ آپ جو 10 سال اور جینا چاہتے تھے اس لاہور شہر میں تو شاید آپ کو وہ چانس نہیں ملنے والا، کیونکہ آگے ہو سکتا ہے کہ آکسیجن سلنڈر لے کے لوگ پھر رہے ہوں، ہو سکتا ہے سانس لینا اتنا مشکل ہو جائے اس فضا میں کہ آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ ہی آکسائڈ نظر آئے یہاں پہ اور آکسیجن جو ہے بالکل نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ جو اسموک کی صورتحال ہے، یہ جو ایک ٹائم ٹاپ ٹرینڈ اس ٹائم چل پڑا ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت جیسے ہی بدلتا ہے موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ اسموک جو ہے یہ سارا سال ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو سورج کی شعاعیں کیونکہ زمین سے بہت قریب ہوتی ہیں تو یہ اس کو جو ہے وہ الٹرا وائلٹ کرتی رہتی ہیں، اس کو جو ہے وہ نکالتی رہتی ہیں، جو بھی اس میں ایسے عناصر ہوتے ہیں، آکسائڈز ہوتی ہیں، کاربن ہوتے ہیں، جو ذرات شامل ہوتے ہیں آلودگی کریٹ کرنے والے۔ لیکن جیسے ہی سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے ویسے ہی زمین پہ سورج کی شعاعیں کم ہو جاتی ہیں، بلکہ ختم ہو جاتی ہیں، اور سورج کی شعاؤں کا نہ ہونا ان کے لیے آزادی کی نوید ہوتی ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ اسموک جو ہے وہ فوگ سے اسموک بنتی ہے اور پھر یہ ہر طرف جو ہے وہ پھیل کے لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں، اسکن ڈیزیز پیدا ہو رہی ہیں، ایون پھیپڑوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسکن کا اور پھیپڑوں کا کینسر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کہاں ہے ہمارا محکمہ جو ہے وہ صحت، کہاں ہے ہمارا جو انوائرمنٹ کا محکمہ، کہاں ہے یہ سب لوگ اور کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی نہ جو ہے وہ اس میں پریزنٹیشن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ صرف درخت لگا دینے سے کیا اتنا آلودہ شہر ہم پراپر طریقے سے اس اسموک پہ کنٹرول پا سکیں گے؟ اور جہاں پر چمنیوں والے دھوئیں نکل رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ کاربن بنانے والی فیکٹریاں یہاں پر چل رہی ہیں، جہاں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سڑکوں پہ رواں دواں ہیں، کیا ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ سب محکموں کو مل کے کام کرنا ہوگا، تب اسموک پر آپ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ایک رپورٹ تیار کی ہے شیخ جعفر صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ تاریخی اہمیت کا حامل عدیم النظیر شہر لاہور اپنے اندر مختلف ثقافتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ خوبصورت قدیم عمارات، باغوں کی عمارت گاہیں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو مقناطیس کی مانند اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے زندہ دلانے لاہور کی تاریخی عمارتیں اپنی خوبصورتی اور تابناکی کھو رہی ہیں۔ وجہ سرد سے بڑھتی ہوئی آلودگی اور سموک ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQ ایئر کی فضائی کوالٹی کی درجہ بندی کے مطابق لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بنتا جا رہا ہے۔ کاغذ یونیورسٹی کی تحقیق کے انکشاف انتہائی چشم کش ہے کہ لاہوریوں کی عمر ہر سال 7 سال کی شرح سے کم ہو رہی ہے، جس ماحول میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت لاہور میں جس قدر سموگ اور فضائی آلودگی ہے، یہ روزانہ 30 سگریٹ پینے سے انسانی جسم کو پہنچنے والے نقصان کے برابر نقصان دے رہی ہے۔ لاہور کے باسی خود یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ لاہور اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ابھی سردی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی اور سوشل میڈیا پر لاہور کی گہری سموک ٹاپ ٹرینڈ کا درجہ اختیار کر رہی ہے۔ 2015 میں جب سموگ نے شدت اختیار کی تو پہلے پہل ہمارا محکمہ موسمیات اس اچانک ہونے والی تبدیلی کو سمجھنے سے ہی قاصر رہا کہ اکتوبر نومبر میں دھند کے ڈیرے کیوں ہیں، مگر اس سمے کو جواب ناسا کی جاری کردہ رپورٹ سے مل گیا، جس میں پاکستان اور بھارت کے متاثرہ علاقوں میں ریڈ مارکنگ کی ہوئی تھی۔ لاہور کی سموک کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ایک پرانا شاخسانہ ہے جس کے تانے بانے مختلف جہتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لاہور جو کبھی ایک قابل ذکر آبادی کا شہر تھا، اب ایک ہجوم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ شہر لاہور میں سموک کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج، جا بجا صنعتی پلانٹس اور ان سے ملکہ سرگرمیاں شامل ہیں۔ لاہور شہر کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی تو یہ ہے کہ جہاں ہریالی تھی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کٹنگ کر دی گئی، حتیٰ کہ اب واگا بارڈر کے قریب بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، شور اور اس پر سموک نے اہلِ لاہور کا جینا محال کر دیا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یہ ماحولیاتی جو ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے لاہور شہر میں، اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمارے محکمے بھی ناکام ہے اور ہم خود بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے۔ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ نے، میں نے، ہماری فیملیز نے یہیں اسی فضا میں سانس لینا ہے، تو کیا ہم اگلے 5 یا 10 سالوں کا حساب کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر اسموک کی یہی صورتحال رہی تو ہمارا سانس لینا کتنا مشکل ہو جائے گا اس شہر میں؟ ہمارے ساتھ شیخ جعفر موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو چکا ہے لاہور شہر کا، لاہور شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آ گیا ہے دنیا بھر میں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बीइंग ए ब्यूरो डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर जी। मैं अपने रिपोर्टर्स से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट उनसे लेता रहता हूँ। अक्सर हम सुबह मीटिंग में ये चीजें डिस्कस भी करते हैं और आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो भी मेरा यही था कि मोस्टली रिपोर्टर्स जैसे महकमा मौलियात, महकमा माहौलियात, ये सिर्फ महकमा माहौलियात का काम नहीं है, जी बिल्कुल, ये तमाम अदारों की जिम्मेदारी है। अदारों के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, हर अवाम के बंदे की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हो क्या रहा है डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि किसी चीज को आइडेंटिफाई कर दिया, सारी चीजें उसके पीछे चल पड़ी। बिल्कुल सही। आप ये नहीं देख रहे कि सिटी गवर्नमेंट जो कारकर्दगी उसको दिखानी चाहिए, जो अदारे को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। आप सिटी गवर्नमेंट की जितनी गाड़ियां सरकारी पुरानी चल रही हैं आप उनको देख लें, स्टार्ट करके सबसे ज्यादा धुआं आपको सरकारी गाड़ियों का लाहौर में नजर आएगा। आप LWMC की गाड़ियां देख लें, आप वासा की गाड़ियां देख लें। ये किसने जिम्मेदारी उठानी है? हर अदारे की अपनी जिम्मेदारी है अपने घर को ठीक करना। अपने घर को जब सब अदारे ठीक करेंगे तो फिर ये सिस्टम बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, अब मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर में रहते हुए अपने घर का कूड़ा जो है वो गार्बेज करके आऊं टिन में जाके, जहां पे LWMC ने रखा हुआ है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, जो कंजेस्टेड एरियाज है, जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं, ज्यादा पोल्यूशन भी आपको वहां पे मिल रही है, ज्यादा बीमार भी लोग वहां पे हो रहे हैं। क्या वजह है कि वहां पे लोग घरों के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़े को आग लगा दी जाती है, स्वीपर आते नहीं है, उठाते नहीं है, 2-3 दिन बाद कोई बंदा वहां पे आग लगा देता है। ठीक है। सरकारी गाड़ियां धुएं छोड़ रही हैं, कार्रवाई होती है, फोटो सेशन होता है। मुझे आप बताएं कि जब एक दफा आपने चालान किया, दूसरी दफा आपने उसको वारंट चालान किया, और भाई तीसरी दफा उसको बंद कर दें, आप क्यों उसको रोड पे चलने की इजाजत दे रहे हैं? आप कुछ अपना किरदार अदा ही नहीं करना चाहते। 2-2 हजार रुपए के हेलमेटों के चालान के पीछे लग गए हम, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो इस चीज पे होनी चाहिए। इंसान, देखे मेरी बात सुने, बहैसियत हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, जो भी हुकूमत है, उसका काम है शहरी की जिंदगी को प्रोटेक्ट करना। वो आते किस लिए हैं? वो इसीलिए आते हैं कि हम अपनी आवाम के लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है, यहाँ पे तो हर बंदे को अपनी कुर्सी और अपनी दौड़ की पड़ी हुई है। तो ये माहौलियात का मामला किसने सही करना है? हर साल हम बातें बड़ी कर देते हैं, हर साल हम कोई नई नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, हर तरीके से हम जो है वो मतलब पब्लिसिटी पे, बारिशें बरसाना, पब्लिसिटी पे हम पैसा खर्च कर देते हैं। और ये सारी लेकिन जो चीजें करने वाली हैं उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? क्यों नहीं इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जा रहा? इंडस्ट्री की ओवरऑलिंग क्यों नहीं की जा रही? क्यों गाड़ियों की प्लांट्स जो लगे हुए हैं जहां कार्बन बन रहा है, जहां बाकायदा तौर पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो जहरीला गैस का धुआं जो है वो फिजा में शामिल हो रहा है, उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? उसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? मैडम, उसकी वजह कि मैं हमारे जराए क्या, मेरे अपने रिपोर्टर्स जो हैं वो उनके पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है कि वहां के माहौलियात के अफसरान, जिला इंतजामिया के अफसरान उसमें मुलव्वस है। वो वहां से अपनी दिहाड़ियां लेते हैं। हमारे रिपोर्टर है उस्मान में माहौलियात में उन्होंने इतना काम किया है और उनकी हमेशा से कोशिश रही, उन्होंने लाहौर के जो मेन स्ट्रीम थी उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्लान वर्कआउट किया और उनको यहां से हटा भी दिया, लेकिन वो दोबारा बुर्जुमान हो गए क्योंकि यहाँ पे माफिया बड़ा मजबूत है। आप मुझे बताएं कि मैं खुद ये अभी मास्क पहन के फिर रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा, ये बहुत जरूरी है शेख साहब। देखें, ये जो मास्क का आपने इस्तेमाल बताया ना, ये इस वक्त में जहां पर अगर आपने थोड़ा बहुत अपने आप को, फेफड़ों को या अपने जो है वो गले को सेफ रखना है ना, तो मास्क आपके बैग में या आपकी जेब में जरूर होना चाहिए। मर्द हजरात भी, खवातीन भी, बच्चे भी, बच्चों को स्कूल आप भेजते हैं, मास्क पहना कर उनको जो है वो स्कूल भेजें। ये स्मोक इंतहाई खतरनाक है, जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए तो जहरे कातिल है। आप यकीन करें। डॉक्टर साहब, इस हुकूमत की पॉलिसीज चेक करें आप कि स्कूलों में असेंबली बंद कर दें और बच्चों की आगे फिजिकल एक्टिविटी तो है ही कोई नहीं, मोबाइल्स हैं, किधर जाएं? ठीक है, बच्चे कहाँ जाएं? यार आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे कहाँ? इस आलूदा माहौल में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे? मैडम, ये किसका काम है? हुकूमत का काम है? एक अल्लाह की तरफ से अगर अज़ाब है, अपनी माफिया मांगे और अपना जो है अपनी एक लाइन स्ट्रीम बनाए। आपके पास चाइना है, आपके पास सिंगापुर है, आपके पास कितने मुल्क हैं जिन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। जाए उनसे टेक्नोलॉजीज पे बात करें, अपने रिसर्चर्स को भेजें। आप तो कुछ करने को तैयार ही नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजीज पे तो बात वो तब करेंगे ना जब वो इस चीज को क्लियर करना चाह रहे हो। वो अगर ये कोई ये चाह रहा हो कि हाँ ठीक है ऐसे ही मर जाएंगे सारे, तो
तो फिर ये तो नासा की मेहरबानी है कि उसने बता दिया था, वरना जब ये स्टार्ट हुआ था 2015 आई थिंक सो, उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि ये है क्या, और ये परेशान थे। सही बात है। तो ये क्या है, तो वो तो नासा ने रेड करके बताया कि भाई ये एक फजाई आलूदगी है, जोन से जो है वो नीचे आ रही है, जिसकी वजह से ये एक फोक सी, एक स्मोक सी बना रही है, की लहर, जी लेयर खत्म तो हो रही है। अदरवाइज अगर वो हमें ना बताते तो हम तो मतलब ब्लाइंड फेट पे पता नहीं कितनी अमवात लेके बैठे होते। आप चले जाएं, आप किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हर दूसरे बंदे के पास रश लगा हुआ है यार, लोगों के वसाइल नहीं है, लोग बेचारे खाएंगे ये दवाइयां लेंगे, दवाइयों का ये हाल है कि महंगाई है। सीने जो है वो छलनी हो चुके हैं, खांस के इतनी ज्यादा शदीद जो है वो तरह का ये अटैक है, एक तरह का ये ऐसा वायरस है जो आपके सांस के जरिए जब मुंतकिल होता है फेफड़ों में, तो फेफड़ों को मतलब बिल्कुल डैमेज कर देता है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोग समझते हैं पता नहीं ये स्मोक की वजह से है, नहीं एक ही बात है, मौसम तब्दील हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। एक ही चीज है कि यहाँ पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आप सैटरडे संडे को आप अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक घर के अंदर अमीरजादों के बच्चे रहते हैं, जनाब अमीरजादे रहते हैं, एक एक गाड़ी रखी हुई है, एक अकेले निकलते हैं। चाइना ने बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी अपनाई, उन्होंने ईंधन की बचत का प्लान किया। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के अंदर जब तक 2 से 3 लोग नहीं होंगे, गाड़ी पे अकेला बंदा ड्राइव नहीं करेगा। आप क्यों नहीं पॉलिसी बनाते, क्यों नहीं बनाते? क्या मजबूरी क्या है आपको? आप वो पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते जिससे अवाम को फायदा हो? इंटरनेशनल लेवल को compete करने के लिए पाकिस्तान तो कहीं उन्हें टच भी नहीं करता ना, कि कहीं थोड़ा बहुत जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की सफ में शामिल ही हो जाए, तो तरक्की याफ्ता तो बड़ी दूर की बात है। तरक्की पजीर में से भी पता नहीं कौन सा लेवल आ गया हमारा। मैडम तो फिर क्या, फिर तो यही हाल है कि आने वाले वक्तों में जैसे रिपोर्ट बता रही है कि 7 साल की जिंदगी कम हो रही है, आने वाले सालों में तो 10-15 साल पे हम चले जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो लाइफ फिर रहेगी कोई नहीं। इसका मतलब है कि फिर सारे क्या पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना यहाँ पर इंसानों ने इंसानों को तंग कर दिया है, जितना यहाँ पर गीबत और बर्बादी और एक दूसरे पे लान तान और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लोगों ने महाज खोले हुए हैं ना, उसमें तो वैसे लोगों का जीना मुश्किल है। एक एनवायरनमेंट ने जो है वो तबाही फेर दिया है कि लोगों को जो है वो अगर इस तरह के लोग टकरे हैं वो भी मुसीबत, और दूसरे जो है वो यहाँ पे इस गंदी एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए जो है वो पार्टिकल्स और वो ज़राअत और वो गंद जो है वो सारा आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो भी मुसीबत। यानी आपकी जिंदगी कोई मायने ही नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, आपकी वैल्यू कुछ नहीं, आप बेहैसियत इंसान, कोई आपको हार्ट अटैक हो जाए, किस वक्त आपको कोई मामला हो जाए, आप देखें कि आपको पता लगता है कल मुझे मिल के गया और डेथ की खबर आ गई, ये क्या है? जवान लोग बिल्कुल जो 30s में जो लोग हैं 20s में इवन के हार्ट अटैक कभी सुना भी नहीं था, शुगर पेशेंट हैं, बच्चे जवान, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर कहते हैं फसलों की बाकियात को हमने रोक दिया है, आप देखें जल रही है, कौन है, कौन सी इंतजामिया है? हर बंदा अपने हिस्से लेके चुप कर जाता है। आप देखें जाके कि आप अगर रेस्टोरेंट्स पे जाएं, अभी भी लकड़ियां क्योंकि जहां गैस नहीं है वो लकड़ियां डाल के जला रहे हैं, वो भी स्मोक उड़ रही है। आप गाड़ियां देख लें, जहां पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है, प्रोटेस्ट आता है, आपको वहां पे इतनी प्रोटीन मिलती है कि आप एकदम से घबरा जाते हैं, आपको हेलमेट भी उतारना पड़ता है, आपको गाड़ी का शीशे का खोलना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये मसनूई बारिश जो बरसाने का एक तरीका जो लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में इस आलूदगी से छुटकारे के लिए, ये क्या है, ये क्या प्रोसीजर है? ये मैम ये एक तरीका कार है, एक पहले इन्होंने ये दुबई से लिया है, ये ऑलरेडी वहां पे सबसे पहले दुबई में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और वहां पे उन्होंने मुस्लिम बादशाहें बसाई थी क्योंकि वहां पे कैद सैली वाली पोजीशन हो गई थी। और ये एक देखें, अगर हम नहीं वहां कैद साली वाली पोजीशन थी ना, वहां पे इतनी एनवायरनमेंट तो नहीं खराब हो गई थी? नहीं वो ये चीज नहीं, ये बारिश के जो है वो इसको कम करने के हवाले से, आलूदगी को कम करने के हवाले से क्या ये बेसिकली जो शहर के अंदर आलूदगी की जो इंडेक्स होता है, जब आप पानी पड़ता है, आप देखेंगे आप कहीं पे अपनी गली में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो मिट्टी उड़ रही होती है, लेकिन या झाड़ू मार रहे हो तो आप उस पर पानी का वो कर देते हैं छिड़काव, तो उससे मिट्टी उड़ना बंद हो जाती है। ये वो सिस्टम है। नहीं ये सिस्टम मतलब अप्लाई कैसे किया जाता है, ये है क्या, कैसे बारिश इससे बरसती है, और ये क्या मैडम ये केमिकल रिएक्शन है। ये एक ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से एक वो बने होते हैं अपना बॉक्सेस से, जिनको आप कहते हैं ब्लिस्टर टाइप, वो ब्लस्ट करते हैं ऊपर, और पानी जो है वो ऐसे करके बादल बनते हैं और उसके बाद ये बरसता है। ये केमिकल रिएक्ट है ये। अच्छा, हाँ जी, ये बाकायदा तौर पे हेलीकॉप्टर से जाके ऊपर से इसको फेंका जाता है और उसके बाद ये बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं और ये बरसते हैं। तो इसका मतलब ये केमिकल्स चलें आप जो है वो जब छोड़ते हैं फिजा में और ये बारिश की सूरत में बरसते हैं, तो ये तो उसी एनवायरनमेंट को या उस हिस्से को जो है वो कवर करते हैं ना, जहाँ पे वो जिस एरिया को जा रही है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड एरिया है और वो कुछ वक्त के लिए होता होगा ना, उसका तो असरात कुछ वक्त के लिए होते होंगे। तो ये इतना पैसा खर्च करने का जो है वो मकसद क्या है? नहीं, कोई मकसद नहीं है।
आप देखें, मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं आपसे एनवायरमेंट की पूरे पाकिस्तान की या पूरे लाहौर शहर की एनवायरमेंट कैसे मैं आपको यही बताने लगा था कि इतने पैसे खर्च करके एक बारिश बरसाने से बेहतर है कि जो रोड के ऊपर चलती हुई काला धुआं छोड़ने वाली सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां हैं, हम इनको बंद करते हैं। उनको बंद हम क्यों, हम देखें, वो जो लोग कूड़ा जला रहे हैं सरेआम, जब वो कूड़ा जलाया जा रहा है, शहर के अंदर कूड़ा जलाया जा रहा है। मैडम ये किसका काम है? ना मेरा ना आपका, ये तो जिला इंतजामिया का काम है। बैग्स जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, वो पहले बंद हो गए थे, कपड़े के बैग्स आ गए थे, अब वो पॉलिथीन शॉपर अभी भी चल रहे हैं, वो शॉपर चल रहे हैं और उनको आग भी लगाई जाती है जब वो इकट्ठा होता है, क्योंकि वो गलता नहीं है तो मोस्टली लोग इकट्ठा करके उसको आग लगाते हैं और वो सबसे खतरनाक फ्यूम होता है जो हवा में जाके लोगों के अंदर जाता है। ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, चीजें हैं, ये भी जलाई जाती हैं, इसके भी जो है वो केमिकल्स फिजा में शामिल होते हैं। पता नहीं क्या कुछ जो है वो कर रहे हैं लोग, और किस किस तरह से गंदगी जलाई जा रही है, क्या क्या मामला जो वो किए जा रहे हैं। आप एक मेडिकल मैंने एक तहकीक देखी थी और उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक दिन का बच्चा पैदा होता है तो जो बाहर का फॉरनर बच्चा था उसके पिंकिश लंग्स थे, और जो हमारे यहाँ पे पैदा हुआ तो उसके माँ के पेट के अंदर भी स्मोक के निशानात आ रहे थे उस धुएं के। जाहिर है, ठीक है। अब वो पता क्या लगा, अब पता क्या लगा कि जी कि उसका हस्बैंड जो था वो स्मोकर था और वो स्मोक की वजह से धुएं की जो, आप ये देखें कि अगर उसका ये हाल था एक सिगरेट का, तो जो ये बाहर गंदगी है जो दिन ढले रात बढ़ जाती है, आप आंखें मार रहे हैं, हाँ, आंखें लाल हो रही हैं, आप घर जा रहे हैं, आप इरिटेट हुए हुए हैं, आपकी टोटली जो है वर्किंग आउट हुई पड़ी है, कोई लाइफस्टाइल आपका। आज का जो इंसान है वो इंतहाई डिप्रेस्ड है, किसी ना किसी वजह से, अपनी सेहत की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ सेहत नहीं है लोगों की, अच्छा खाना नहीं है, क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। जब टीवी लगाओ कोई ना कोई जो है वो ऐसी खबरें देने के लिए हम सारे बैठे हुए होते हैं कि जिसपे हमें खुद भी जो है टेंशन हो रही होती है, दूसरों को भी टेंशन देते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम जो है वो लोगों की जहनी सेहत को उजागर कर सके, कोई उन्हें थोड़ा रिलैक्स किया जा सके, कोई उन्हें इस इन्वायरमेंट से निकाल के थोड़ा सा जो है वो जिंदगी की तरफ, लाइफ की तरफ वापस लाया जा सके। और ना ही हम जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हैं। बाहर अगर वॉक करने जाएंगे तो एनवायरमेंट का बुरा हाल है, वो गंदी जो एक अदारे क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे? क्या वजह कर रहे होते तो आज नौबत यहाँ तक ना आती। वो तो मानते ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं और आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे, आप उनसे पूछें, वो तो आपको अपनी जब इतनी बड़ी लिस्ट देंगे वो कहेंगे हम तो काम कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि ये पेरिस बनेगा, लाहौर को तो पेरिस से कंपेयर किया जा रहा था, नारा लगा था कि लाहौर पेरिस बनेगा। इस तरह का पेरिस, हाँ जी पेरिस, इस तरह का तो पेरिस जो है वो मतलब है कि हमें तो समझ नहीं आ रही। धुएं का पेरिस बन रहा है ना, स्मोक पेरिस। लेकिन मैम बात यह है कि देखिए इन अदारों के भी तो बच्चे हैं, वो बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, वो भी तो बाहर निकलते हैं। मुझे ये लगता है कि जो इन महकमों में काम करने वाले अफसरान हैं, ना उनकी फैमिली ना उनके बच्चे लाहौर शहर में नहीं रहते हैं। पहली बात, वो कहीं बाहर रहते हो, जरा इन्वेस्टिगेशन कर लें। ये भी अपने रिपोर्टरों की आप जब ड्यूटी लगा दें आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकी फैमिलीज यहाँ पर रह रही होती तो ये लोग इस एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए ज़रूर काम करते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दूसरों के बच्चों और दूसरों के लिए जो ये तकलीफ़ें पैदा कर रहे हैं, ये अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की नाराज़गी इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हमारे सामने इस वक्त रौनुमा हो रही हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने के जो है वो हालात और मामलात हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे का गला काटने पर लगे हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर बहतानबाजी पे लगे हैं। एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने के लिए रिश्वतखोरी आम हो चुकी है। यहाँ पर पैसा दे के हम अपने काम करवा लेते हैं, पैसा दे के हम किसी पर भी जो है वो झूठे इल्जाम लगवा लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पीछे गवर्नमेंट ने एक प्लान आउट किया कि जी कि ये 2 स्ट्रोक लक्ष्य और चिंची को बंद किया जाएगा। हम तरक्की की बजाय चिंचियों पे आ गए हैं। और इस वक्त जो पोल्यूशन में जो रोल 2 स्ट्रोक अपना लक्ष्य का और ये इसका चिंचियों का ना, आप मुझे बताएं कि लाहौर शहर से कम उनको तो बाहर निकाल दें, कम से कम अपने शहर को सेफ तो कर लें। आपके पास तो पॉलिसी कोई नहीं है, आप करना क्या चाहते हैं? आप कुछ बयान तो करें ना कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत है किधर है। देखें, हुकूमत को तो कोई नहीं सवाल कर सकता, नहीं तो कल को आपके घर के दरवाजे खटक रहे होंगे, फिर ना आप हमें कहिए। डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने तो अपना फर्ज अदा करना है इस चैनल के थ्रू। आवाम तक जो है वो हम अपनी जो है हमारा जो फर्ज है वो पूरा करेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में इनकी औलादों ने भी इसी मुल्क में परवान चढ़ना है और इसी मुल्क का हिस्सा बनना है, तो इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।
پروگرام کا وقت بس ختم ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہی ملاقات ہوگی. مختلف محکموں کی کارکردگیاں اور باضابطگیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.